प्रमुख ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 पाकिस्तान विमान तबाह किए। ऑपरेशन सिंदूर पर एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने यह बड़ा बयान दिया है। We did achieve some success in that. Some of them, of course, were sending videos back to us, so we could get that, to the result immediately. Some of them, of course, we had to wait for our satellite imagery to come in. So we did achieve some success in that, and we kept ourselves very calibrated. We did not want to escalate unnecessarily, because for us, the immediate the Operation Sindoor, the objectives were to take care of terrorist camps and terrorist infrastructure, and that was taken care of. So here is one of the videos that we have of a radar being attacked by one of our loiter munitions. This is the control cabin, which is which has been attacked. I've cut it short a bit because after this it goes into where the system can be seen, which system we are operating, which I want to not give out in open. Some of the pictures of other radars, Arifwala, here after the radar attack, you can see there are soot marks here. Again, not very clear to a layman, but the specialists, when they analyze these pictures, they tell us what exactly the damage has. And it became a big issue, trying to tell our own people, unfortunately our own people, as to what we have been able to achieve. We had intelligence of what has gone on inside. We had intelligence of, a human kind of intelligence, where we had very clear picture of inside in terms of there has been huge damage. There have been so many terrorists which have been neutralized. But we could not convince our own people that, look, we have achieved that. But this time again, a thing like this would have given us the same problem. But we were lucky, and we got these videos on the open. This is the same building from inside. You see the amount of damage that it has created, because all these penetration weapons. The sound is from that video. So they cause this kind of damage. From outside, you get a feeling as if it's just a small hole. So I'm very happy that this time we were able to, take care of that ghost of Balakot, that we were able to tell the world what we have achieved. Coming back to Sindoor, again, after this, what we did, we were able to, we were able to very clearly understand that we have achieved our objectives. Some similar damage was done on the other 7 targets of the army. We had the pictures very clear. We had the शुक्रवार को प्रदेश के अलग अलग जिलों में एनआईए की बड़ी कार्रवाई हुई। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और दौसा में एनआईए की टीम ने छापा मारकर कार्रवाई को अंजाम दिया। ये कार्रवाई इतनी गोपनीय थी कि लोकल पुलिस को भी पहले से कोई सूचना नहीं दी गई। माना जा रहा है कि ये छापेमारी गैंगस्टर और संगठित अपराध से जुड़े मामलों में हुई है। प्रदेश में एनआईए की ताबड़तोड़ कार्रवाई। श्रीगंगानगर के 13 ठिकानों पर छापेमारी की। दौसा और हनुमानगढ़ में भी एक्शन। अवैध हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में एनआईए एक्शन में नजर आ रहा है, तो वहीं ताबड़तोड़ कई इलाकों में छापेमारी की गई है। श्रीगंगानगर के 13 ठिकानों पर छापेमारी की और हनुमानगढ़ के संगरिया इलाके में भी छापेमारी की गई। एनआईए की इस कार्रवाई से तस्करी के किसी बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ होने की संभावना है। इस कार्रवाई को लेकर एनआईए की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। एनआईए की यह कार्रवाई गैंगस्टर और दूसरे जुड़े नेटवर्क के खिलाफ चल रही जांच का हिस्सा है। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के बाद तीसरी कार्रवाई दौसा जिले के सांथा गांव में हुई। यहां करोड़ों रुपए के संदिग्ध ट्रांजैक्शन मामले में एनआईए और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त दबिश दी। सूत्रों के मुताबिक जिनके घर पर छापा मारा गया, वहां से पिता पुत्र मौके से फरार हो गए। एनआईए अब उनके घर में मौजूद दस्तावेजों और संपत्ति की जांच कर रही है। अचानक हुई इस कार्रवाई से गांव में हड़कंप मच गया।
दौसा में एनआईए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। आज दिल्ली से एनआईए की टीम दौसा पहुंची और दौसा पुलिस का स्थानीय जाब्ता भी एनआईए की टीम के साथ मौजूद रहा। एनआईए की टीम छापेमार कार्रवाई करने के लिए महुआ इलाके में पहुंची और बताया जा रहा है कि सांथा गांव में एनआईए की टीम ने रेड मारी है और रेड के बाद में जिस घर में दबिश दी गई वहां पर जो जिसके ऊपर सख्त आरोपी वो मिला नहीं है, उसका बेटा भी नहीं मिला है, यानी दोनों पिता पुत्र फरार हो गए हैं। पूरा मामला अवैध रूप से ट्रांजैक्शन का है, करोड़ों रुपए का खाते से लेन देन हुआ है, इस तरह का एक मामला है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। तो वहीं पुलिस ने माउंट रोड पर गुजरात के पर्यटक हत्या का राज साफ करते हुए एक आरोपी भूरा राम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि हत्या के मामले में 3 नाबालिगों को निरुद्ध किया गया है। आपको बता दें कि हत्या का खुलासा करने के लिए पुलिस की 20 टीमों को टास्क सौंपा गया था। इनमें 11 टीमें माउंट और आबू रोड के जंगलों में उतरी थी। रात भर सर्च अभियान चलाया गया। 3 थाना क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। आपको ये भी बता दें कि गुजरात के बनासकांठा जिले के धानेरा निवासी हितेश चौधरी और उसका मौसेरा भाई नरेश चौधरी बाइक पर माउंट आबू घूमने आए थे। वो तलहटी से माउंट जा रहे थे, तभी बाइक पर 6 लोग आए और चाकू मारकर मोबाइल, नकदी और दस्तावेज लेकर भाग गए। दो भाई थे, वो यहाँ माउंट आबू घूमने के लिए आए थे। तलहटी से जब ऊपर आबू पर्वत में जा रहे, जहाँ माउंट आबू पे जा रहे थे, तो रास्ते में छिपावेरी चौकी है, उससे करीब 1.5-2 किलोमीटर पहले वहाँ पे वो रुके हुए थे, मोबाइल पे बात कर रहे थे। इसी दौरान 2 मोटरसाइकिलों पर करीब 6 जने गए। जाते ही उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल रोककर उनका मोबाइल छीनने की कोशिश की और छीना झपटी के दौरान उनके साथ मारपीट की। 2 जनों के पास चाकू थे। चाकू से जो मृतक हितेश कुमार है उसके सीने पर लगी और दूसरा है उसके हाथ पे चोट आई। बाकी ने धापामुक्की से मारपीट की। तो वहीं झुंझुनू में स्मार्ट मीटर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। सिंघाना में पूर्व चेयरमैन विजय कुमार पांडे ने कहा कि स्मार्ट मीटर के बहाने आम उपभोक्ताओं को आर्थिक रूप से कमजोर कर कंपनियों का फायदा पहुंचाया जा रहा है। स्मार्ट मीटर से आम उपभोक्ताओं पर बिजली के बिलों का भार बढ़ेगा। बैठक में जिला परिषद सदस्य पंकज धनखड़ ने कहा कि ये कदम उपभोक्ताओं की जेब पर सीधा हमला है। उन्होंने घोषणा की कि 20 अगस्त को बुहाना और सिंघाना संपूर्ण बंद कर स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध दर्ज करवाया जाएगा। स्मार्ट मीटर के नाम से आम बिजली उपभोक्ता को लूटना चाहती है। स्मार्ट कंपनियों का सरकार पर दबाव है, इसलिए इस तरीके की योजना हटा के जिसमें सरकार उपभोक्ताओं से पैसे लिए गए, आज उनको कचरे में डाला जा रहा है और नए मीटर सरकार लगा के कंपनियों को फायदा पहुंचाना चाहती है। इसके विरोध में सिंघाना कस्बा भी पूर्णतः 20 तारीख को बंद रहेगा। तो वहीं राजस्थान के अलग अलग जिलों से इस वक्त शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते दिख रहे हैं। कहीं शिक्षकों की कमी तो कहीं प्रिंसिपल का तबादला विवाद बना हुआ है। देखिए 3 जिलों की 3 तस्वीरें जहां स्कूली गेट बंद है और छात्रों के हाथ में ताले की चाबी है। कहीं शिक्षक की कमी, कहीं जर्जर भवन, स्कूल में तालाबंदी, जमकर विरोध प्रदर्शन, बदहाल व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश। राजस्थान के कई जिलों से एक जैसी तस्वीरें और एक जैसा दर्द सामने आया है। कहीं शिक्षक ही नहीं है तो कहीं प्रिंसिपल की राजनीतिक द्वेष का शिकार बन गए। स्कूलों में ताले लटके हैं, क्लासरूम खाली हैं और गेट के बाहर हो रही है पढ़ाई की लड़ाई। ये तस्वीरें शिक्षा व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करती है।
ये तस्वीरें हैं करौली के सपोटरा की, जहां प्रिंसिपल संतराम मीणा को एपीओ किए जाने पर इनायत स्कूल के छात्र भड़क उठे। राजनीतिक द्वेष का आरोप लगाते हुए छात्रों ने स्कूल पर ताला जड़ दिया और विरोध में नारेबाजी की। मामले की सूचना उच्च अधिकारियों को भी दी गई है। हमारा प्रिंसिपल वापस चाहिए, वापस चाहिए, वापस चाहिए, हमारा प्रिंसिपल वापस चाहिए, वापस चाहिए, वापस चाहिए। वहीं भीलवाड़ा के कोटड़ी क्षेत्र में सरकारी स्कूल में शिक्षकों की कमी से नाराज छात्रों ने स्कूल के बाहर ताला जड़ दिया। न कोई गणित पढ़ाने वाला, न विज्ञान समझाने वाला। छात्रों का कहना है कि कई बार शिकायत की लेकिन सुनवाई नहीं हुई। छात्रों का कहना है कि पढ़ाई ठप पड़ी है और लंबे समय से शिक्षक नहीं है, लेकिन विभाग आंखें मूंदे बैठा है। हनुमानगढ़ के राठीखेड़ा गांव में भी स्कूल के हालात ठीक नहीं। ग्रामीणों ने स्कूल में तालाबंदी कर धरना शुरू कर दिया है। आरोप है कि स्कूल में पढ़ाई का स्तर बेहद खराब है। 10वीं में 10 में से सिर्फ 4 छात्र ही पास हो सके। ग्रामीणों ने प्रधानाचार्य समेत 2 शिक्षकों के तबादले की मांग की है। अब शिक्षा अधिकारी और टिब्बी पुलिस मौके पर समझाइश में जुटी है। प्रधानाचार्य और आशु कुमार जी और विकास जी और राजेंद्र जी की वजह से, और इन्होंने बाहर के बच्चों की एडमिशन कराए और जो हमारे रेगुलर बच्चे जो आ रहे थे गांव के, उनके ऊपर दबाव बनाया गया कि आप ओपन के फार्म भरो, आपको रेगुलर नहीं पढ़ाया जाएगा। और शिक्षा व्यवस्था हमने 7 बार तो प्रशासन को अवगत कराया और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी को भाई मैं आज आप यहाँ पर आए, सेना के जवानों अधिकारियों के साथ रक्षाबंधन का पर्व सेलिब्रेट करा, किस तरह का सभी प्रदेशवासियों को, सभी मेरे प्रदेश के भाइयों को बहुत बहुत रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देती हूँ। और मेरे लिए, हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है, सम्मान की बात है कि आज हमने हमारे सैनिकों को राखी बांधी। मैं यहाँ आई, हमारे आर्मी कमांडर साहब से मैंने रिक्वेस्ट किया कि हमारे जो सचमुच में जो हमारी देश की रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, सीमाओं पे खड़े रहते हैं हमारी रक्षा करने के लिए, उनको राखी बांधने का मुझे अवसर दीजिए। तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट को माना। तो मैं हमारे आर्मी कमांडर जो है यहाँ पर, उनको भी धन्यवाद दूंगी, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद दूंगी। और मेरी सभी महिला मोर्चा की बहनें यहाँ आई, हमने सबने मिलकर हमारे सैनिकों को राखी बांधी। इससे बड़ा सौभाग्य और कोई नहीं हो सकता। मेरे लिए तो आज मेरा रक्षाबंधन तो इतना अच्छा मैंने मनाया है, इससे पहले कभी नहीं मनाया इतना अच्छा। वैसे मैं सैनिक की बेटी भी हूँ। मेरा जन्म हुआ जब मेरे पिताजी आर्मी में थे। तो ये जो यहाँ आकर तो मुझे ऐसा लगता है, आर्मी के बीच आकर तो ऐसा लगता है कि मैं अपने परिवार के बीच आ गई। तो बहुत अच्छा लगा। और ये जो मौका है, मुझे पहली बार मिला है कि सबको राखी बांधने का। मुझे लगता है हम सब लोग, ये जो हमारे सैनिक हैं, फौजी हैं, ये हमारे भाई हैं। मतलब हमारे घर पे तो हमारे भाई हैं ही, लेकिन जो खून के रिश्ते से ज्यादा इनका जो रिश्ता है, जो ये हमारे लिए करते हैं, देश के लिए करते हैं, वो तो मैं सोचती हूँ कि हम जितना उनके लिए करें उतना कम है। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी भी, आपने देखा होगा कि हर त्योहार, चाहे दिवाली हो, चाहे कोई भी ऐसा बड़ा त्योहार हमारा होता है, उसमें सैनिकों के बीच जाकर सरहद में जाते हैं, सीमा में जो सबसे दूर जो हमारा इलाका होता है, उनके बीच जाके वो त्योहार मनाते हैं। तो उनसे भी मैंने भी बहुत कुछ सीखा है कि ये करना चाहिए, ये इनको सम्मान देना। तो मतलब ये तो मैं मानती हूँ कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये इतना करते हैं। मैम, रक्षाबंधन की शुरुआत ऑप सिंदूर के सक्सेसफुल होने के बाद, इसके बारे में रूबरू हुई? बिल्कुल। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से सेना ने जो देश के लिए, देश की रक्षा के लिए